basis on which all other laws are built. Okay, civil law is valuable because it is the grand norm, the basic principle, and that is what we are going to discuss today. Most of you are here, so I am starting with the discussion that in this topic, as you can see, we are going to discuss what do we understand by due process. Followed by this, once we are going to discuss what is due process, we will further discuss that when Supreme Court was very much quick in protecting an individual from Bihar who had committed some mistake in form filling, and because of the digital divide. Now what do you understand by digital divide? Okay, so this is one aspect. After this, the whether the court can amend an arbitral award. Now these are the concepts which are very basic, right? It is usually seen that arbitral awards are to be seen as a very important, or you can say very difficult topic. The students get confused. Now this arbitral award is with respect to arbitration tribunals. What is arbitration in totality? You don't have to know. You don't have to know each detail. So we are going to discuss that topic. After this, we are going to discuss a very interesting concept where, see, arbitration is a big topic, okay? After this, we are going to see there are certain sections of Hindu Marriage Act, nullity of marriage and divorce, okay? What are the conditions of marriage? All right. What are the conditions of divorce? And so I have used the language of Bare Act to help you train on how you have to read the legal language, okay? So there are a lot of concepts that will come here, that whether the daughter is up to the age of 15, above the age of 15, below 18, when she can file for divorce. All right, what are those conditions? There would be also a discussion on void marriages, voidable marriages coming from these sections. Then what are the general grounds of divorce available to the spouse, and what are the alternate reliefs which are available if not divorce, and this general presumption that the law provides 1 year to a marriage. शादी होने के 1 साल तक आप डिवोर्स की पिटीशन नहीं डालते, और अगर आपने पिटीशन डाल भी दी है तो कोर्ट यूजुअली 1 साल तक रुकेगा मैरिज को नलिफाई करने के पहले. तो ये एक जनरल प्रिजम्पशन है जो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट से निकल के आता है. तो उसके ऊपर हमें लीगल रीडिंग करनी है. उसके बाद हमारे सामने दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत रीसेंट का जजमेंट है, जहाँ पे ये कहा हाई कोर्ट ने दैट वाइफ लीविंग मैट्रिमोनियल होम फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट हस्बैंड्स फॉल्ट इज मेंटल क्रुएलिटी. नाउ मेंटल क्रुएलिटी इज इन इटसेल्फ is a ground of divorce. All right, the biggest question that judiciary has is what constitutes this mental cruelty. Now these are the topics that we have to discuss today, and it could be quite lengthy, but it will be very informative for all of you. All right, any problem so far? And if you will look into past year papers, you will find that civil law is important, like 3 to 4 passages. 3 to 4 passages you will be motivated, or you can say will be sourced from civil law, the concepts of civil law. All right, now to begin with, let me ask this question, that what do you understand by due process of law? So there is procedure established by law. There is procedure established by law, and the other concept is due process of law. I want to know what do you understand from these two concepts. What do you understand? What are your views on this? How many of you have heard these two things before? Most of you have heard. How? Okay, so I want a simple explanation, maybe. Okay, is
नॉट लाइक फॉलो नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। समझ गए? अब देखो यहाँ पे लिखा है लोकल्स फर्दर क्लेम। कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चंस में वो लोग क्या करते हैं क्लाट वाले कि यहाँ से एक स्टेटमेंट ऐसे निकाल लेंगे, एक स्टेटमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, या ऐसे निकाल लेंगे, द अथॉरिटीज स्क्रैप्ड द रिमेन्स ऑफ द श्राइन टू रिमूव ऑल एविडेंस ऑफ डेमोलिशन। ये एक स्टेटमेंट उठा लेंगे, ओके, और ये वन ऑफ द ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा दैट विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट डीडीए डिड नॉट फॉलो, दैट डीडीए डिड नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस, okay, that DDA did not follow due process. And in this there would be three options written. First, that they did not provide time to remove their belongings. Second, that the prior notice was not sent for the demolition drive. Third, एक statement ऐसा लिखा होगा that authorities scrapped the remains of the shrine to remove all evidence of demolition. Fourth, all of the above. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, पैसेज में दिए हुए हैं और सारे स्टेटमेंट्स पैसेज से फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दोगे, जबकि आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि ड्यू प्रोसेस और डीडीए, ऐसा क्या है कि जो ये दिखाता है कि डीडीए ने ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया। तो ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि एज एन अथॉरिटी आप सामने वाले को टाइम देते हैं क्या करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द केस। आप टाइम देते हैं टू रिप्रेजेंट द केस। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज राइट टू बी हर्ड इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ। So the reason, then the correct reason would be the second statement, that no prior notice of the demolition was sent by the DDA to the Masjid Committee, and this is against the concept of due process. Why you are eliminating statement 3? Because it is the claim of the locals. It is the claim of the locals. Whatever locals are claiming might be propaganda, might be emotional statement, or might be a blame. ओके, सो हो सकता है कि अथॉरिटीज़ ने ऐसा किया हो, लेकिन ये फैक्ट की तरह, ये ट्रूथ की तरह हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है और उसमें ट्रूथ हम वेरीफाई नहीं करेंगे, वो लॉ का प्रिंसिपल है, तो स्टेटमेंट 2 वैलिड है। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपको बता रहा है कि उस मोमेंट में, सिचुएशन में डीडीए किस तरीके से एक्ट कर रही थी। तो ये दिखाता है कि डीडीए ने डिसीजन बहुत रश लिया, बहुत जल्दी में लिया। लेकिन क्या जल्दी में डिसीजन डीडीए नहीं ले सकती? जल्दी में डिसीजन ले सकती है, बिकॉज ये अथॉरिटी है, इसके पास पावर है। ओके, सेकंड, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यहाँ लिखा है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इट बीइंग एन इलीगल स्ट्रक्चर। तो सामने वाली पार्टी को आपको टाइम देना चाहिए जहाँ पे वो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रख सके और ये बता सके कि आपका डिमोलिशन इलीगल है। आप हमें ये कह रहे हो कि दिस प्लेस डज नॉट बिलोंग टू अस, आई हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो सामने वाले पक्ष को वो बात रखने के लिए आपको टाइम देना है, आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। और अथॉरिटी कैसे अपॉर्चुनिटी तुमको देती है? अथॉरिटी ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अथॉरिटी ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू हियर बाय सर्विंग अ नोटिस ऑन यू, बाय सर्विंग अ नोटिस ऑन यू, है ना, तुमको नोटिस भेज के। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने को पता चले कि डीडीए का नोटिस आया, कब डीडीए का नोटिस आ रहा है, आज क्या तारीख है, मान लो 28 मई को, तुमको शाम को आ रहा है और कह रहा है कि 30 मई तक अगर आपने केस नहीं रिप्रेजेंट किया हमारे सामने तो हम आपके स्ट्रक्चर को इलीगल मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीज़नेबल टाइम की भी बात होती है। टाइम पीरियड, रीज़नेबल टाइम पीरियड देना चाहिए किसको? टू अपोजिट पार्टी, टू अपोजिट पार्टी टू शो कॉज, टू शो कॉज टू द नोटिस। तो जब भी कहते हैं नोटिस का जवाब जब भी दिया जाता है तो उसको कहते हैं शो कॉज, ठीक है, टू शो कॉज टू द नोटिस। टाइम पीरियड देना रहेगा और टाइम पीरियड रीजनेबली देना रहेगा। ओके, यस। सर व्हाट वुड बी एन एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड? जैसे कि इस केस में यू आर सेइंग कि 8 दिन दिए गए, बट कैन दे नॉट से कि इतना पुराना स्ट्रक्चर एंड ऑल है, सो दे नीड मोर टाइम टू गेट द पेपर्स टुगेदर? पुराना स्ट्रक्चर, सी दैट इज अगेन आई एम सेइंग दैट दिस विल बी मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट दैट एम्पावर्स डीडीए। So DDA will give any time they think is
30 on days, cutting and the 30 demands. days यूजुअली दिए जाते हैं हर नोटिस के लिए, हर नोटिस के रिप्लाई के लिए 30 डेज दिए जाते हैं, यूजुअली नहीं, दिए but जाते हैं. like this is a very older structure, so they could say कि कागज पूरे नहीं है, we need more time to get together our papers and everything. Since it's a 70-year-old structure. Yes, if the, let us say there is no mention of reasonable time period, and let's say DDA says that 7 days notice is enough, 3 days notice is enough because the structure is old, right? Then it is also to the role of the courts. It is also the role of the courts to interfere and determine that what would be the reasonable time period. If the parliament has not mentioned reasonable time period, it is the duty of the courts to interfere in such matters and define the reasonable time period that should be there. This is exactly the purpose of due process of law. Following it? So you will come to know when you will read the entire article, no? I've just started with the explanation part and I'm telling you that what are the expectations whenever you hear the word due process. Children also studying in now raised Behrul Ulum Madrasa were asked to exit the complex barefoot without warm clothes. Now, all of these facts which are presented before us indicate that authorities were in some sort of rush, right? And they were very, very unsympathetic towards the local dwellers here, right? Now, author is criticizing such demolition drives because he is mentioning that this has become a commonplace sight in different parts of the country where entire neighborhoods are razed down in certain areas. So there is, now notice the word, on a preliminary inquiry. On a preliminary inquiry, DDA officials stated that demolition was carried out pursuant to a decision by the religious committee on 4th January 2024. So what DDA is mentioning that we had, let us say DDA के authorities ने ये किया, action ले लिया, right? तो ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में उन्होंने बोला डीडीए ऑफिसर्स ने ये डेमोलिशन ड्राइव क्यों करा, क्योंकि वहाँ के रिलीजियस कमिटी के द्वारा ये चीज़ कर दी गई थी. तो इनका कहना ये है कि जब रिलीजियस कम्युनिटी को हम ने डिसीजन दिया और उनको पता है कि डीडीए ये डेमोलिशन कर देगा, 4 जनवरी को रिलीजियस कमिटी ने भी, तो उनकी नॉलेज में तो था, नॉलेज ऑफ लोकल डेवलपर्स जो है उनको इसके बारे में पता था, मस्जिद में रहने वाले लोग, क्योंकि वो रिलीजियस कमेटी वही है जो मस्जिद को एडमिनिस्टर करती है, राइट? तो ये डीडीए ने अपने डिफेंस में ऑलरेडी बात कही है. ओवर द लास्ट, अब देखो ये ऑथर का पॉइंट है. अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज़ नॉट अ जजमेंट. दिस इज़ नॉट अ जजमेंट वेयर एवरी लाइन इज़ अ रूल ऑफ लॉ. जजमेंट में क्या होता है, अगर कोई जजमेंट से एक्सर्प्ट आता है, ये भी आप समझिएगा क्लैट में, ठीक है? अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लीगल इंग्लिश है इसमें, तो वो डेफिनेटली एक जजमेंट का एक्सर्प्ट है और वो बहुत छोटा सा पैसेज होगा. उसमें हर एक लाइन रूल ऑफ लॉ होगा, हर एक लाइन लीगल प्रिंसिपल होगा. लेकिन ये एक रैंडम ऑथर का आर्टिकल है, एडिटोरियल है, ये कैसे अपने को पता चलेगा दोस्त? तो लीगल जब पैसेज तुमको मिलेगा क्लैट में, मैं तुमको ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखो इनको अपने दिमाग में हमेशा रखना, यू हैव टू बी स्मार्ट. तो उसमें तुम देखना लीगल के पैसेज में सोर्स दिया है कि नहीं दिया है. अगर लीगल के पैसेज में उन्होंने सोर्स मेंशन करा, उसमें लिखा हुआ है कहीं पे इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये इंडियन एक्सप्रेस जजमेंट तो छापता नहीं है, ये तो किसी ऑथर का ओपिनियन छापेगा. तो उस पैसेज में तुम लीगल प्रिंसिपल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे. मान लो अगर कहीं पे सोर्स नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे सोर्स मेंशन ही नहीं है, सीधे पैसेज दिया हुआ है क्लैट के पेपर में, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सर्प्ट है लीगल प्रिंसिपल का, वो किसी लीगल टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ हो सकता है और उसमें हर एक लाइन अपने आप में रूल ऑफ लॉ होगी. इस वाले पैसेज में जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें हर लाइन एक रूल ऑफ लॉ नहीं है. तो इसीलिए जो ये वाला पैराग्राफ आप देखेंगे, इस पैराग्राफ में कुछ प्रिंसिपल आपको नहीं मिलेगा. इट्स अ मियर टेलिंग यू, इन फैक्ट द 2 पैराग्राफ्स आर सिंपली टेलिंग यू द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. The conceptual clarity about due process is that due notice has to be served. Right? Now author is criticizing that this reveals the way bulldozer are used, the neighborhoods are demolished. This reveals that there are dangerous patterns where urgent intervention is required. Urgent interference is required. And who will interfere this? So author is saying that this is blatant violation of Article 21 because when you demolish a particular structure, it might be, place of dwelling
it might be source of income for somebody. So Article 21 also includes right to housing as a subset under right to life, right? When it is blown, it is basically a major blow to the rule of law concept, and different parts of the world are also criticizing such measures. Now, what is the lack of due process? Now, CLAT will not give you such headings. CLAT will not give you such headings, right? So, statutes that enable the demolition of unauthorized buildings or premises unfit for habitation. See, premises unfit for habitation, or the buildings are unauthorized. Now, this is where you need to understand, okay, this is the legal principle. What is the legal principle? The statutes, when laws under which demolition drives are conducted. Demolition can only be conducted in number one case when the buildings are unauthorized, and number two case if the buildings are unauthorized for habitation or unfit for habitation. Let us say the building is lying in an area where it can be flooded, or it can be prone to landslide. Definitely such structures would be demolished. Okay, so then this becomes the legal principle. Two conditions are mentioned. Demolition will be conducted if the buildings are unauthorized. Second, if they are unfit for habitation. The third principle that they are mentioning is that no such demolition drive should be carried out without serving adequate notice to the affected persons. The requirement of notice is also accompanied by the obligation. मतलब कि नोटिस रहेगा, उसके साथ एक चीज़ और क्या रहेगी? ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड शो कॉज अगेंस्ट द डेमोलिशन in accordance with the principles of natural justice. And due process of law and natural justice means the same thing. Both are enablers. Principles of natural justice को complete कराता है due process of law, right? In the case of most recent demolitions, notices have not been either served or have been served in a manner that renders the purpose of such notices meaningless. Which means author is saying that when you had communicated this to the religious committee, to the religious community who had been managing the mosque. Okay? But this did not mean that notices were served to the neighborhood. This is what the author is saying. तुमने मस्जिद के संचालक को तुमने नोटिस दी थी, डज नॉट मीन कि उसके आसपास में रहने वाले लोगों को भी तुमने नोटिस दी. तुमने मस्जिद तोड़ा तो तुमने पूरा नेबरहुड तोड़ा, राइट? Also, author is criticizing that the use of bulldozers, एक symbolism है, has now become synonymous with such demolition since people are forcefully evicted from their dwellings under the threat of physical violence and are often not even provided enough time to retrieve their belongings. Now, there is no law that protects them on site, but author is criticizing it on humanitarian grounds. So, the lack of effort to meaningfully engage with affected communities or provide them with alternate housing facilities exacerbates means increases the vulnerability of those at the receiving end of such forced evictions and overnight demolitions. Again, this is the opinion of the author. There is no legal principle in this. So you can quickly read it and ascertain कि अच्छा author किस intent पे लेके जा रहा है. Okay. Now there is a clause of good faith, and it is mentioned local laws. So you will find, okay, the management of buildings or infrastructure, public dwellings are within the state governments. Because local laws का मतलब क्या होता है? State laws. जब भी कभी वर्ड लिखा रहे local laws, इसका मतलब है state laws. तो दिल्ली का अपना नियम है बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए, ओके? तो जो गुड फेथ का क्लॉज है अंडर लोकल लॉज, देखिए ये ऑफिशियल्स पे लगेगा. किस पे लगेगा? ऑफिशियल्स पे. कौन से ऑफिशियल्स पे? नगर निगम के अधिकारियों पे, स्टेट के अधिकारियों पे. कि such demolitions to enjoy complete immunity by providing that no suit, prosecution or legal proceeding against shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith. अब अधिकारी अगर कोई डेमोलिशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं डल सकता. नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ. अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्लैट कंसोर्शियम अगर आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे मैंने क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए हैं, बट तुमको मैं बता रहा हूँ क्लैट कंसोर्शियम कहाँ घुमाएगा तुमको. क्लैट कंसोर्शियम कहेगा कि नोटिस जो सर्व होती है, नोटिस सर्व्ड मस्ट बी इन गुड फेथ. ऐसा स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है, वेदर दिस स्टेटमेंट फॉलोज फ्रॉम द पैसेज और नॉट, नोटिस सर्व्ड मस्ट बी इन गुड फेथ.
notice served must be in good faith. Whether this passage, this statement is being inferred from this or not. Notice served must be in good faith. Yes. अरे why not? Why not? नोटिस सर्व करना है, ये उनका ऑब्लिगेशन है, और अगर नोटिस सर्व करेंगे तो उसमें स्टेट अथॉरिटीज़ गुड फेथ में काम करेंगी. यही तो कह रहा है. यस. और कह रहा है कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है, दिस इज़ प्रिज्यूम्ड that if the officials are taking decisions under such demolitions, then they are doing that in good faith and they are protected from any sort of criminal case. समझ रहे हो? डीडीए ने अगर तुम्हारा घर तोड़ दिया है और डिसीजन लिया है तो ये गुड फेथ में किया जा रहा है, ऐसा माना जाएगा. इसीलिए तुम डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ कोई केस नहीं डाल सकते. तो मैंने तुमसे क्या बोला, तुमको क्या देखना था? गुड फेथ वाला क्लॉज किसके लिए कह रहा है ऑथर? ऑफिशियल्स के लिए कह रहा है. तो नोटिस कौन सर्व करता है? ऑफिशियल सर्व करते हैं. ऑफिशियल्स नोटिस गुड फेथ में ही तो सर्व करेंगे. ठीक है. आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि कंप्लेंट्स अगेंस्ट सच नोटिसेस, कंप्लेंट्स अगेंस्ट सच नोटिसेस need not be in good faith. Need not be in good faith. As per this passage. तुम सरकार ने नोटिस दिया कि तुमको घर खाली करना है, तुमने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया, कंप्लेन किया अथॉरिटी के सामने, ये गलत नोटिस है, इलीगल नोटिस है, तो उसको गुड फेथ में होने की ज़रूरत नहीं है. Following it, and this is coming from section 51 of Delhi Development Authority Act of 1957. So this is the statute under which Delhi Development Authority has wider powers, right? So again, see, author is now suggesting that you need to change the entire system, but again such words are not there in clad passages. So it says that the wide ranging powers, देखो wide ranging powers जो है, ये word term है जो indicate कर देता है कि author जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है डीडीए की पावर्स को. ये वाइड रेंजिंग पावर्स का मतलब जब भी आप यूज़ करते हो तो आप क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐसे वर्ड शब्दावली को यूज़ करोगे. ठीक है. द वाइड रेंजिंग पावर्स प्रोवाइडेड टू द स्टेट इन डिटरमाइनिंग एंड क्लासिफाइंग बिल्डिंग्स एज अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस नीड टू बी री इमेजिन्ड. हाउ? बाय लेइंग डाउन क्लियर स्टैंडर्ड्स परजुएंट टू विच डेमोलिशंस ऑफ सच बिल्डिंग्स मे बी कैरिड आउट. तो क्या ऑथर ये कह रहा है कि डीडीए को डेमोलिशन नहीं करना चाहिए, डीडीए शुड नॉट डेमोलिश? ये नहीं कह रहा है. डीडीए को प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बना देने चाहिए कि किस तरह की बिल्डिंग को वो इलीगल कहेंगे और डेमोलिश करेंगे. यानी ऊपर जो दो कंडीशन हमने पढ़ी थी जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि बिल्डिंग्स को डेमोलिश तभी करेंगे, यू विल ओनली डेमोलिश द बिल्डिंग प्रोवाइडेड दैट दे आर अनऑथराइज्ड और दे आर अनफिट फॉर हैबिटेशन. इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली डिफाइन कर देने चाहिए फॉर 1 and 2. व्हाट आर 1 and 2? अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स एंड अनफिट फॉर हैबिटेशन. इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को क्या करिए? डिफाइन करिए. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग, राइट? दैट एवरी ऑर्डर मीट्स द टेस्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड स्पेल्स आउट कंक्रीट रीजंस फॉर द प्रपोज्ड डेमोलिशन. ये भी आपके लिए देखिए प्रिंसिपल है. ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या? क्लार्क कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा एज पर द ऑथर ड्यू प्रोसेस इंक्लूड्स, तो आप बोलोगे इट इंक्लूड्स सर्विंग ऑफ नोटिस, इट इंक्लूड्स सर्विंग ऑफ नोटिस. ड्यू प्रोसेस इंक्लूड्स concrete reasons for such demolitions. So given that those at the receiving end of such notices are often people coming from vulnerable communities and low income groups, they do not have the resources to make representations before court and seek timely judicial intervention. ऐसा नहीं होता उनके पास वकील करने का. Alternatively, इसके अलावा the burden of producing evidence substantiating the validity of a demolition order should be placed on the official ordering such demolition to ensure that every order meets the test of due process. इसका मतलब यहाँ पे जब भी नोटिस आता है ना, तो जो व्यक्ति विशेष जिसका घर टूट रहा होता है उसको टाइम दिया जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि डेमोलिशन क्यों ना कराया जाए.
ठीक है, ये लिखा है कि लीगल मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर ये है कि जिसका घर तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर ये बर्डन है कि वो आके ये बताए डीडीए को कि वाई देयर dwelling शुड नॉट बी demolished. नाउ दिस इज अ ग्राउंड फॉर क्रिटिसिज्म. ऑथर के हिसाब से ग्राउंड ड्यू प्रोसेस क्या है? ये नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति आपके पास आए. जो अथॉरिटी है उसको प्रॉपर रीजंस देने पड़ चाहिए, प्रॉपर रीजंस देने चाहिए अपनी नोटिस में या अपने ऑर्डर में जिसमें वो डेमोलिशन को कर रहा है. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटी टू कम टू द पीपल एंड कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट देयर dwelling and all of that. Now these are the opinions of the author, not the judgment. But as per the author अगर क्वेश्चन पूछे, as per the principle of due process जो आपको समझ में आ रहा है, it means that serving of the notice is also important. The reasons that are given by the authority to conduct such demolition must be very very well examined, properly लिखे होने चाहिए. ठीक है, क्लाड कंसोर्शियम ऐसे सिचुएशन दे देगा दैट द एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ एन एरिया. द नेबरहुड हैड नो पेपर डॉक्यूमेंट्स. द नेबरहुड हैड no paper documents, no valid documents, but Delhi Development Authority served a notice of demolition without giving concrete reasons. Now, as per the information given in the passage, such a decision of Delhi Development Authority is A. Following the test of due process, B. Not following the test of due process for so and so reasons, C. Not following the test of due process because concrete reasons were not mentioned, and D. That the neighborhood community did not file complaint against such notice within due time. इस तरीके से ऑप्शंस फ्रेम कर देंगे वो. अब आपको ये समझना पड़ेगा वहाँ पे. देखिए, आपने इसके पहले ऐसे पैसेजेस पढ़े हैं क्या डेमोलिशन ऑर्डर के? हैव यू रेड? सो कंसीडर ईच पैसेज वट एवर यू आर रीडिंग राइट नाउ like it is coming for the first time, and what are the things that you need to adjudge in such passages. So every order meets the test of due process means that notice and concrete reasons should be there. Okay, and rest whatever is mentioned here is the opinion of the author, and you can read about it. What is a tripartite process? Tripartite means that three parties must be there. In three parties, wherever demolition has to be done, so it is telling you that because large scale demolitions are being done, so we need additional safeguards. And what are the safeguards? दैट वेयर जहाँ पे पूरा पूरा नेबरहुड आपको बर्बाद करना है, तोड़ना है, वहाँ पे आपको डेमोलिशन कराने के पहले, एविक्शन कराने के पहले, लोगों को निकलवाने के पहले 3 लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए. ट्राईपार्टाइट प्रोसेस. पहले अपना उद्देश्य बताइए कंक्रीट रीजंस के साथ कि आप क्यों डेमोलिशन करना चाहते हैं, जिसको आप 2 वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे और ऑब्जेक्शंस को बुलाएंगे. पब्लिक आके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है. ठीक है, जो प्रपोजल है डेमोलिशन का अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्शंस इफ एनी शुड बी एग्जामिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट कमिटी, जिसमें एक स्टेट अधिकारी होना चाहिए और एक जज भी होना चाहिए. सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए उसमें. और तीसरा कि जो जब आप डेमोलिशन कर रहे हैं, लोगों को घर से निकाल रहे हैं, तो आप यूज़ ऑफ फोर्स शुड बी मिनिमाइज्ड एंड बुलडोजर्स शुड नॉट बी यूज्ड until the premises have been completely evacuated. ठीक है, कह रहा है गिवन दैट दीज वायलेशंस आर नॉट इंडिविजुअलाइज्ड बट रादर सिस्टमिक. कह रहा है बुलडोज़र चला देना, बुलडोज़र से घर तोड़ देना, फोर्स का इस्तेमाल करना लोगों को घर से निकालने के लिए, ठीक है, धक्का मुक्की करना, इस तरह की चीज़ें किसी ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल की वजह से है, ऐसा है कि ये पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है. इसीलिए हमें कानूनी रूप से बदलाव करने की ज़रूरत है. लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इज़ मस्ट इन एनी केस accompanied by robust judicial action. So author is suggesting that incorporation of due process, concrete reasons to be given by the authorities, ये सब कुछ आपको दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में अमेंडमेंट्स करके इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, अब देखो ऐसा पैसेज क्लैट में आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर क्लैट कंसोर्शियम छोड़ देगा तो तुम लीगल प्रिंसिपल और व्यू ऑफ द ऑथर और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छांट पाओ, फिल्टर कर पाओ. जितना जल्दी इस चीज़ को तुम सीख लोगे, जितना जल्दी ये करना आ जाएगा, उतना जल्दी तुम क्लैट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे. बिकॉज ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द क्लैट आर गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जामिनेशन
you cannot know all the topics of law because they haven't defined the scope of the syllabus. They simply say contemporary judgments. Now, contemporary judgments include every day the judgment that is coming of the Supreme Court. So we cannot certainly know. But the basic concept of due process कि हाँ अथॉरिटीज़ को नोटिस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, कंक्रीट रीजंस देना चाहिए, ये हर स्टैट्यूट में किया जाता है. पुलिस के पास भी पावर्स दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताती है पुलिस, ठीक है, आपको टाइम देती है, फिर आपको कोर्ट लेके जाएगी अगर कस्टडी में रखेगी, तो ये सब ड्यू प्रोसेस का पार्ट है. इतना अपने को पता होना चाहिए. एनी प्रॉब्लम सो फार? Following it? Any problem so far? Right? So what I'm going to do is I'm going to share the sheet in your group as of now, and after I have completed the explanation of the first part, you will spend 2 to 3 minutes to read that entire document. Okay, and then we'll move to the next passage. So it is important that you read and figure out the challenging statements which are there, if there are any. Okay. So as you can see, the next topic is with respect to the ill effects of digital divide, and this is the intervention of the court, सुप्रीम कोर्ट. अब देखो सुप्रीम कोर्ट ना ट्रिवियल मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करेगी. किसी ने अपने फॉर्म में, किसी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ को गलत भर दिया. डेट ऑफ बर्थ को दिसंबर 8 से दिसंबर 18 रख दिया, और इसके बाद उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है, और उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया. कैंडिडेचर को रिजेक्टेड, है ना. क्यों? क्योंकि उसने डेट ऑफ बर्थ अपना गलत भरा था. और डेट ऑफ बर्थ गलत भरना एक्चुअली प्रिज्यूम क्या करता है, ये कहते हैं ना कि आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से भरेंगे, तो उसमें प्रिज्यूम करता है कि आप मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनिंग बॉडी को गलत इन्फॉर्मेशन देके. और अगर आप मिसलीड करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनिंग बॉडी को, तो आपका कैंडिडेचर एग्जामिनिंग बॉडी रिजेक्ट कर सकती है. तो क्या डेट गलती से भरना, वो भी ऐसे केस में जब आपने खुद से फॉर्म ना भरा हो, आपने साइबर कैफ़े में जाके इस फॉर्म को फिल करवाया है, राइट. साइबर कैफ़े में जाके आपने इस फॉर्म को फिल करवाया है ना. तो उस केस में क्या ये चीज़ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के अंडर कंसीडर की जाएगी? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बारे में है दैट द टू जजेस जस्टिस J.K. Maheshwari and Justice K.V. Vishwanathan held that error in the application form was very trivial. What is the meaning of the word trivial? Trivial means very, very generic in nature. ठीक है, very generic in nature, right? Error was very trivial and this did not play any part in the selection process. Also, the state was not justified in making a mountain out of this molehill. Now, making a mountain out of this molehill is a English idiom that you should know. ठीक, बाकी आपको पूरा क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो आप रीड करेंगे. कुमार हैड आर्ग्यूड, देखो ये वर्ड लिखा है आर्ग्यूड, जहाँ पे वर्ड आर्ग्यूड हो वो प्रिंसिपल नहीं होता है. आई डोंट नो ये बात आप लोग नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं. कहीं पे वर्ड आर्ग्यूड है तो उसको फटाफट रीड करने का वो प्रिंसिपल नहीं होगा. स्टेट गवर्नमेंट वेहेमेंटली अपोज्ड द पिटीशन, तो ये भी लीगल प्रिंसिपल अपने लिए नहीं होगा. दोनों लीगल प्रिंसिपल अपने लिए नहीं होंगे, राइट. दोनों ने आर्ग्यू किया दैट द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड दैट द कैंडिडेट्स should read instructions carefully, and if any information is found false or wrong, then the application form would be cancelled and legal action would be initiated against providers of false information. Now, this is what the principle is, because it is telling you what the court has stated. कहाँ पे? Unimpressed with this stand taken by the state government, the bench observed, मतलब court observed. तो ये है principle तुम्हारे लिए, that the error was not so grave as to constitute wrong or misleading information, right?
Now, what is the basis on which the Supreme Court has formed this decision is not given. And that is where Clark will also know कि यार बच्चे को क्या पता कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये आपको सामने इंडिकेट कर रही है कि रॉन्ग और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंटेंट और एक्शन दोनों का होना ज़रूरी है. तभी स्टेट आपको क्या करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा, पनिश करेगा. अब देखिए रीजनिंग देखेंगे. तो सबसे पहली जो बेंच ने रीजनिंग दी वो ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हैड नॉट रिजॉर्टेड टू एनी एक्शन अंडर क्रिमिनल लॉ, clearly implying that even they did not consider this error as having fallen foul of the advertisement. यानी कि स्टेट बोला था ना कि लीगल एक्शन लेगा, तो इस गलत डेट के लिए स्टेट ने लीगल एक्शन नहीं लिया. मतलब स्टेट का लीगल एक्शन ना लेना मतलब वो भी मानते हैं कि एरर बेसिक है, कॉमन है, कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है. And that is where the court says that we do not think that the appellant could be penalized for this insignificant error which had no difference to the ultimate result. Error of this kind, as noticed in the present case, which are inadvertent, do not constitute misrepresentation or willful suppression. अब आपको ये समझ में आता है कि अच्छा willful misrepresent suppression and misrepresentation of information ये भी एक ग्राउंड है कैंडिडेचर को रिजेक्ट करने का. तो ये भी आपके लिए एक प्रिंसिपल है. बस यही ट्रिक्स हैं कि क्या नोट करना है, व्हाट टू इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ अनइम्पॉर्टेंट, एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके. द बेंच फर्दर हेल्ड दैट द पिटिशनर हैड पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्लियर्ड ऑल स्टेजेस सक्सेसफुली. इज दिस द ग्राउंड ऑफ रिलीफ दैट कोर्ट हैज रिलाइड ऑन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो स्टेटमेंट मैंने अभी ब्रैकेट में डाला है, is this the ground of relief that the court has relied on? आप आंसर करेंगे no sir. This is not the ground for relief. The ground for relief is that the mistakes in while filling the form were not done under misrepresentation. It was not willful suppression, and also they were not trying to provide any misleading information. So this is the ground of relief. ठीक है. पिटिशनर ने सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर कर लिया है, इसलिए उसको नहीं निकाला जाएगा. ये ग्राउंड ऑफ रिलीफ नहीं है. इट इज़ वन ऑफ द रीजंस द कोर्ट कह रहा है ना. द एरर इन द एप्लीकेशन वॉज ट्रिवियल एंड डिड नॉट प्ले एनी पार्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस. बस ये आपके लिए प्रिंसिपल है. ठीक है. अब देखिए, टर्न अ नेल्सन्स आई मतलब होता है टर्न अ ब्लाइंड आई. अब देखिए, यही मैं कहता हूँ कि आप विविड रीडिंग करिए, और विविड रीडिंग मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. ठीक है. डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ द मोल हिल एंड टर्न अ नेल्सन्स आई. दीज आर द टू इडियम्स दैट वी हैव स्टडीड टुडे. ठीक है. बाकी क्या है, बाकी जो ओपिनियन है वो आप रीड करेंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वाश कर दिया उन्होंने और कैसे क्या है वो, दैट यू विल फाइंड. सो अगेन यू हैव अनदर 1 मिनट और सो टू रीड दिस पर्टिकुलर. 1.5 मिनट ले लीजिए, 1.5 मिनट, एंड इस टॉपिक को, इस पैसेज को रीड करिए, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट. What does the court mean when the court says that it has a rarefied atmosphere of the cyber cafe? See this line. What is the meaning of this line? Because it is written, no, the bench underscored. So underscored का मतलब होता है अंडरलाइन करना किसी चीज़ को. ठीक है. मतलब हाईलाइटेड. अंडरस्कोर्ड मतलब द बेंच हाईलाइटेड और पॉइंटेड आउट. इनका मेन जजमेंट नहीं है, लेकिन इनका वन ऑफ द कोर्ट का रीज़न है. अरे साइबर कैफ़े में जब तुम जाते हो फॉर्म वॉर्म फिल कराने के लिए, तो कभी कभी मैनी पीपल माइट बी देयर. नो नो नो. द रेरिफाइड एटमॉस्फेयर ऑफ द साइबर कैफ़े इंडिकेट्स दैट द पर्सन हु वेंट टू द साइबर कैफ़े बिलीव्ड दैट जो भी इंफॉर्मेशन भरी होगी वो सही ही भरी होगी, बिकॉज साइबर कैफ़े में बहुत लोग फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं. बिहार का केस है ये, राइट. एंड दैट इज़ वाइट इज़ रिटन गॉट बेटर ऑफ द एपेलेंट. मतलब एपेलेंट को ये लगा कि फॉर्म मेरा सही भरा होगा. ही ओमिटेड टू नोटिस द एरर एंड इवन फेल्ड टू अवेल द करेक्टिव मैकेनिज्म ऑफर्ड. करेक्टिव मैकेनिज्म ऑफर्ड.
करेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब होता है फॉर्म फिल करते हो जब एग्ज़ाम का, तो आपको एक हफ्ते 10 दिन का टाइम देता है एग्जामिनिंग बॉडी कि अगर मान लीजिए कोई डेटा आपको लग रहा है कि आपने गलती से भर दिया है। इसीलिए आप देखिए जब आप फॉर्म प्रिंट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का एक प्रिंट आउट मिलता है, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस का जो प्रिंट आउट मिलता है जिसमें आपने क्या नाम डाला, क्या एड्रेस डाला, उसका प्रिंट आउट रहता है। तो वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आप देख लो, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है और आपको उसको चेंज कराना रहेगा, राइट। इस केस में यहाँ पे क्योंकि साइबर कैफ़े था, तो साइबर कैफ़े में इट वॉज बेसिकली द एपेलेंट हु प्रिज्यूम्ड दैट एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन द फॉर्म इज़ करेक्ट एंड ही डिड नॉट चेक दैट एप्लीकेशन फॉर्म। और उसने 7 दिन 10 दिन जो भी टाइम दिया गया होगा फॉर्म करेक्ट करने का, उसने उस दिन उतने टाइम पीरियड पे करेक्ट नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी वी कैनॉट टर्न अ नेल्सन्स आई टू द ग्राउंड रियलिटीज दैट एग्जिस्टेड। तो बेंच ग्राउंड रियलिटी उस टाइम पे क्या एग्जिस्ट कर रही थी वो तक लेके चल रहा है कंसिडरेशन में कि क्या हुआ ऐसा, और इसके बेसिस पे कैंडिडेट से रिजेक्ट नहीं होगा। यस मनीषा, द वॉज ओवरवेल्म्ड by the atmosphere and failed to notice the error. No, not exactly overwhelmed by the atmosphere, मतलब हम जब साइबर कैफ़े, देखो तुम लोग फॉर्म भरते हो अपने घर पे, बट बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के, देखो उसने पीईटी का भरा था, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये सब का। तो टीचर वीचर वाला फॉर्म मतलब पढ़े लिखे मतलब डिजिटल नॉलेज नहीं होता है उनको, तो वो साइबर कैफ़े में बोलते हैं भैया इसका फॉर्म भरना है, पैसे लो, ये रहा आधार कार्ड, ये रहा हमारा डिग्री और ये सब। तो साइबर कैफ़े वाले सारा काम करते हैं। आई डोंट नो if you have seen this in your locality, in your neighborhood or not, but this is very much rampant in the Purvanchal area. Cyber cafes still exist here. People still pay 20 rupees to run computers for 1 hour. Okay, so everybody does not have a computer at their home, or you can say printers at their home. Now this is the next topic that we are going to see. बाकी आप उस topic को read करके समझ सकते हैं. The difficult statement I have explained. Okay, whether the courts can amend the arbitral award. Now you see, you have to understand what is arbitration first, and you have to understand that there is an arbitration and conciliation act. So usually we hear about arbitration as out of court settlement, out of court settlement. And remember that this out of court settlement can be either for a civil matter, can be either for a commercial matter, can be either for a civil matter, or can be either for a commercial matter. Arbitration is not done for criminal cases. Arbitration is out of court settlement, so there is a independent neutral person. There is a neutral person who is basically deciding the matter between two parties A and B. So the neutral person is called as the arbitrator. Arbitrator. And this arbitrator must be the choice of must be the choice of both A and B. Both A and B. So they will appoint A and B are in a commercial contract for sale purchase. Okay, they have the contract. So they say that if there is any dispute which will be arising, we will be referring the matter to arbitration. And for arbitration, we'll try to choose Mr. So and so as the arbitrator. Now, since arbitrator is mutually decided, arbitrator has to follow the rules of civil law, which means it can call in evidences, it can call in statements, it can look into documents, okay, and it can reach to a conclusion, right? Whatever judgment the arbitrator, whatever judgment the arbitrator gives is considered to be an arbitral award. When one of the party is a foreign company, when one of the party is a foreign company or a foreign country, okay, then such matters are arbitration are called as international commercial arbitration. International commercial arbitration. Okay, and international commercial arbitration
cannot be binding on foreign judgments, cannot be binding on on foreign courts or foreign countries, राइट, फॉरेन कंट्रीज। तो ये कहा जाता है कि यार तब तो फिर आर्बिट्रेशन का कोई सेंस ही नहीं होगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इसीलिए ये सारी पावर दी गई है कि अगर एक कोई फॉरेन कंपनी फॉरेन कंट्री रहती है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट फोरम, सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट फोरम विच कैन हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच जजमेंट, हेल्प इन सच एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। और देखिए आर्बिट्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट बहुत नया है, इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट बिकॉज इट वॉज देयर इन 1940s, बट इंडिया ने इसको 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के अंदर यूज़ किया, 1996 में। तो हमारे यहाँ जो आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट का जो यूजेज है वो बहुत न्यू है, इट इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट। और फॉरेन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशंस में हमें फॉरेन कंपनीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को कैसे कंपेल कर सकते हैं ऐसा करो या ना करो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट प्रिज्यूम करता है क्या कि आर्बिट्रल अवार्ड इन द केस ऑफ फॉरेन जजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ओके, विल बी वेरी वेरी फाइनल। आर्बिट्रल अवार्ड कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट। वाई? बिकॉज द कोर्ट्स, अगर कोर्ट भी आर्बिट्रेशन के मैटर पे डिसाइड करने लग गई तो ये आउट ऑफ द कोर्ट कहाँ हुआ, ठीक है। तो आर्बिट्रल अवार्ड्स को फाइनलिटी देने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में ये कहा गया है दैट द कोर्ट्स कैन नॉट अमेंड और अल्टर द आर्बिट्रल अवार्ड। एंड हियर द सेक्शन 34 and 37 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 is being questioned here, which empowers the Supreme Court basically, right, to determine whether courts can modify an arbitral award in proceedings under section 34 and 37. As you will find here, most of the judgments, the Supreme Court in most of the judgments where government of India was concerned, state of Karnataka was concerned, right, uh, this is again a statutory authority. In all these judgments, the arbitration act does not allow the courts to modify the arbitral award. The courts have to make sure that the arbitral award is followed by the parties. The court cannot change the arbitration award, which means arbitration and conciliation act के अंदर दिए गए judgments, arbitrator के द्वारा दिए गए judgments final होते हैं, right? और as a matter of routine practice, the Supreme Court has either modified arbitral awards or upheld modified awards numerous times. But the Supreme Court, in the order dated February 2024, has either modified awards or upheld modified numerous times. Now, this article tells you that even the modifications of such awards are not allowed. So, courts can amend the arbitral award or not. As per the judgment, it is seen that sometimes the court has modified the arbitral awards and sometimes the court had also upheld the arbitral awards. But whether it should be done or not, is dependent on the parliament. Parliament should amend the Arbitration and Conciliation Act to allow the courts to alter the arbitral awards in very very limited circumstances. समझ गए? This amendment to the law will align the 1996. Now this is the opinion of the author, and the author is telling you that let us compare the law with respect to how it exists in other countries, and it will take UK, Singapore, US and Australia as an example, and will tell you in the later stages that we must comply, right? देखो ये लिखा हुआ है, allowing courts to modify arbitral awards when necessary does not come at the cost of compromising on the core principles of party autonomy and minimal judicial intervention. Now, party autonomy and minimal judicial intervention, ज़रा इस पैराग्राफ को आप पूरा पढ़िए और इन दो वर्ड्स का सेंस डिटरमाइन करने की कोशिश करिए. आई विल एक्सप्लेन यू कि ये क्या कह रहा है, एंड गिव मी अ क्विक मिनट हियर.
Hi everyone. So, what do you understand by party autonomy and minimal judicial intervention? If I say that these are the two core two core reasons for according to arbitration, would you agree that these are the two core reasons why companies resort to arbitration? That they want that our commercial interest should be preserved between us, buyers, and there should be minimal intervention of the regular courts, right? So this indicates that the interference of the court with respect to modifying should be very very limited and well defined, and the proceedings are disposed of quickly, right? So author is suggesting that this power must be there with the court, but this power should not come by the way of supreme court judgment. सुप्रीम कोर्ट का दल खुद ही से कह दे कि आर्टिकल सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर मेरे पास ये पावर है कि मैं आर्बिट्रेशन अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट की तरफ से होना चाहिए। यानी पार्लियामेंट, ऑथर कह रहा है 1996 की एक्ट में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये अमेंडमेंट तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। कोर्ट्स कैन नॉट अमेंड अ स्टैट्यूट। एट एनी कॉस्ट। ये पता है ना सबको? कोर्ट्स कैन नॉट अमेंड द स्टैट्यूट एट एनी कॉस्ट। कोर्ट्स कानून को बदल नहीं सकती। कोर्ट्स हैव टू लिमिट देयर इंटरप्रिटेशन। कोर्ट्स हैव टू लिमिट देयर इंटरप्रिटेशन विद इन द ऑब्जेक्टिव और विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। Right? If the Supreme Court, the larger bench, right, who is referring to these challenges, will give the power to the court to modify the awards, it will be contrary to the legislative intent, because you know under this the author will tell you that the courts have to stay within the statutory provision. And please read this paragraph from here till here. From here till here, this paragraph. This अपने आप में this particular paragraph can come as a passage. अपने आप में एक passage की तरह आ जाएगा. Just read it quickly. So you can clearly find out that it is written here that जब भी सुप्रीम कोर्ट को किसी लॉ को इंटरप्रेट करना रहता है, उसके सामने जब भी केस आता है ना, तो उसकी जो पावर है इंटरप्रिटेशन की, वो पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ के अंदर होती है। तो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनका एक क्लियर सेंस होता है। तो कोर्ट को किसी ऐसे वर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, स्टैट्यूट्स दैट अ कंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग।
कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे आपको कोई वर्ड को ऐड करना पड़ रहा है, सब्सटीट्यूट करना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें आप इंटरप्रिटेशन में मत करिए। जितना लिखा है उसको इंटरप्रेट करिए, राइट। और इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट को हमेशा सही मानता है कोर्ट, राइट। So this is the principle of interpretation of statute, which was explained in detail in Shiv Shakti Co-op Housing Society Nagpur versus Swaraj Developers and others, in which the judgment the court observed that the intention of the legislature is primarily to be gathered from the language used, which means that attention should be paid to what has been said as also to what has not been said, right? So any other additions to the meaning is to be avoided. And there are multiple judgments where this has been used. Now, if you apply this rule of interpretation, you will find that as of now, the Arbitration Act does not empower the courts to modify the arbitral awards. The legislature did not intend to give courts this power. जब 1996 में एक्ट बनाई लेजिस्लेचर ने, तो उस टाइम पे लेजिस्लेचर ने जानबूझ के पूरा सोच समझ के कोर्ट्स को इस पावर से दूर रखा. This is what the author is saying, and saying that if you want to do that, only the parliament can do that by way of legislative amendment, right? And such an amendment would bring Indian law with what is prevalent in UK and Singapore, and will allow India to become an arbitration friendly jurisdiction at the global stage. Companies, actually international companies, look into this aspect as well, कि तुम्हारे यहाँ का आर्बिट्रेशन लॉ कैसा है, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर नहीं लगाएंगे तुम्हारे यहाँ पे. उनके वकील जो होंगे वो ये सब करने के लिए मे बी दे माइट नॉट बी वेल इक्विप्ड. तो आर्बिट्रेशन को ही वो कंसीडर करते हैं कि सिंगापुर आ जाओ, यूके आ जाओ, लेट्स मीडिएट द मैटर बिटवीन एंड दैट लेट्स डिसाइड द आर्बिट्रेटर बिटवीन अस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. सो ऑथर लास्ट में आपको ये देता है, इस चीज़ का वास्ता देता है कि पार्लियामेंट जो है वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को ही अडॉप्ट कर रहे थे, तो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. तो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है. तो अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली प्रैक्टिसेस को, सिंगापुर में चलने वाली प्रैक्टिसेस को हमें भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए. क्लियर हुआ? कोई डाउट? बोरिंग है थोड़ा सा ना, ये सब पढ़ना बोरिंग है. बट देन आपको यही देखो, एक बार अगर अपने वंस वी हैव यू अंडरगॉन थ्रू दिस प्रोसेस, जहाँ पे हमें टॉपिक जो है आर्बिट्रेशन डिटेल में नहीं पता, लेकिन हाँ आर्बिट्रेशन के बारे में बेसिक चीज़ें पता है कि कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यही प्रिंसिपल अपने को पता है. अगर मान लो क्लैट में कोई पैसेज आ गया ऐसा, तो ये प्रिंसिपल तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता है उसके इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सब फालतू दी गई है या उतनी रेलेवेंट नहीं होगी. ठीक है, तो इसीलिए इसका क्लास का नाम रहता है कि मिसलेनियस लॉ. मिसलेनियस मतलब कोई एक फिक्स्ड सब्जेक्ट एरिया से नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया से, मल्टीपल प्रिंसिपल बेस पे है. ठीक है. बैंक वाइकेरियसली लायबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला. अब देखो, वाइकेरियस लाइबिलिटी तुम कहाँ पढ़ते हो दोस्त? वाइकेरियस लाइबिलिटी तुम सिविल लॉ में पढ़ते हो, और वाइकेरियस लाइबिलिटी तुम क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ते हो. वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ में कॉमन इंटेंशन के रूप में जानी जाती है, और वाइकेरियस लाइबिलिटी टॉर्ट लॉ में एक तरह से लाइबिलिटी आपकी डिसाइड करती है कि आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, राइट. अब ये आपके सामने एकदम रैंडम पैसेज है. लेट अस से आपके पास 3 मिनट हैं, आप इस पैसेज को पढ़िए. फिर इसके बाद जब मैं इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँगा, तो बस आपको ये चेक करते हुए चलना है कि आपने जो चीज़ें समझी थी, जहाँ समझी थी, जैसे समझी थी, वो एग्जैक्टली वैसी है कि नहीं है ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन. एंड कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे. सो क्विकली स्टार्ट रीडिंग इट एक्टिवली. मतलब पढ़िए इसको 2 मिनट के अंदर.
अब आपसे पहला सवाल मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि अरे कंज्यूमर फोरम इंडिया में सिंगल टीयर है, डबल टीयर है, थ्री टीयर है, क्या ओवरली सेंट्रलाइज्ड है? कंज्यूमर फोरम इंडिया में सिंगल टीयर है, डबल टीयर है, थ्री टीयर है या ओवरली सेंट्रलाइज्ड है, ये आपको ढूंढ के बताना है। सार्थक, टीयर से क्या समझ में आता है? टीयर्स का क्या मतलब होता है? लेवल्स सर। तो लेवल्स ध्यान से फिर से देखो, दो हैं कि तीन है? सर कोर्ट को भी काउंट। नहीं, कंज्यूमर फोरम्स के लेवल पूछे अच्छा। हैं ना। कितने हैं? सबको देखो, एवरीबॉडी नोटिस कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है और एक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। तीन लेवल पे है, राइट? और सुप्रीम कोर्ट ने किसका जजमेंट ओवररूल किया है? नेशनल। एनसीडीआरसी का। एनसीडीआरसी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे कि फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट का ही मामला है शायद, और हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स जो हैं, the amount was given by the person to the bank at, what is the reasoning that Supreme Court has used to presume this fact to be true? जब 1,60,000 रुपए व्यक्ति ने दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग यूज की इसको सच मानते हुए? आई मीन, टू 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 सच मानने के लिए, टू कंसीडर इट टू बी ट्रू, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी? नो 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 नो, ये सब तो फैक्ट्स हैं। ये तो रीजनिंग कहाँ हुई? बैंक लेजर है, द मनी वॉज हैंडेड ओवर टू द बैंक ऑफिशियल्स, ये सब तो फैक्ट्स हो गए। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग, लीगल रीजनिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे माना? सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलाया नहीं कस्टमर को। सुप्रीम कोर्ट को तो पता नहीं कि क्या हुआ था कि क्या नहीं हुआ था, 1,60,000 रुपये दिए थे या धकोसलेबाजी कर रहे हैं। हाउ डिड सुप्रीम कोर्ट फिगर दैट आउट? अब एक बात देखिए, अब मैं इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दिया हुआ है, जल्दी से पढ़िए। अच्छा, रीड दिस इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू टेल मी, मतलब एक्सपैंड योर स्टेटमेंट। ये बैंक के लेजर से पता चल रहा है मनी वॉज हैंडेड टू द बैंक ऑफिसर्स, नहीं, एक्सपैंड दिस स्टेटमेंट रीजन के साथ।
the reasoning here is that when the national consumer forum, the consumer forum at the national level was perusing the records of, अब NCDRC अगर ऑर्डर देगा तो स्टेट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट ही देगा, ओके। तो NCDRC के सामने जब ये मामला आया तो NCDRC ने ये ध्यान से देखा ही नहीं क्या कि डिस्ट्रिक्ट फोरम इस चीज़ से सेटिस्फाइड था कि एपेलेंट्स ने 1,60,000 बैंक ऑफिशियल्स को दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट के फोरम पे ये चीज़ ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुकी है। ना ही इस बात को चैलेंज किया स्टेट कमीशन के सामने, ना ही इस बात को चैलेंज किया जा रहा है नेशनल कमीशन के सामने। नेशनल कमीशन के सामने बैंक कह रही है कि जो एफडी का जो रिसीट लेके आए हैं ये फ्रॉडलेंट तरीके से लेके आए हैं, सिंस देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट बीइंग ट्रांसफर्ड इन द बैंक्स लेजर, बट बैंक की कोई सप्लीमेंट्री बुक में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम थी, अगर ये बात थी कि फ्रॉडलेंट तरीके से तुमसे फिक्स डिपॉजिट की रसीद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो बैंक को हमने 1,60,000 रुपये दिए, बैंक ने हमको रसीद दी, अब हमको हमारा पैसा नहीं दे रही है, तो ये बात आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के सामने क्यों नहीं चैलेंज की? ये बात आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के सामने क्यों नहीं बोली कि एफडी जो है वो फ्रॉडलेंट है? जबकि उल्टा आपने क्या किया, आपने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, ठीक है, आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई और इस इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, राइट, सर्टेन ऑफिसर्स के अगेंस्ट, और आपने वो चीज़ करी भी, यानी कि गिल्ट ऑलरेडी आप एडमिट कर रहे हैं, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि 1,60,000 रुपये आपने लिए थे। जो फिक्स डिपॉजिट रसीद है उनको भी टाइम टू टाइम रिन्यू किया गया, ये बात भी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बताई। तो ये कोर्ट कह रहा है कि NCDRC ओवरलुक द डिस्ट्रिक्ट फोरम्स फाइंडिंग एज नोटेड अबव दैट द बैंक वाज वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, राइट। So the findings of the NCDRC are contrary to record and cannot be sustained. The bank is vicariously liable for the acts of his employees. The court proceeded to set aside the decision of NCDRC and allowed the appeal. The original decision of the district forum was thereafter restored. And district forum had given the judgment in the favor of the customer, जिसने 1,60,000 रुपये बैंक को FD के तौर पे दिए थे, राइट। और 8 वीक्स का टाइम दिया है इस ऑर्डर के पास होने के लिए। अगर मान लीजिए 8 हफ्ते के अंदर बैंक कंप्लाई नहीं करती है तो फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होंगी, मतलब कि जजमेंट एनफोर्स कराने के लिए भी आप कोर्ट में केस डाल सकते हो। अगर सामने वाले व्यक्ति कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहा है तो आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी कोर्ट में स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो ये मामला है तो बहुत सिंपल सा, बैंक्स आर वाइकेरियसली लायबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट फिगरिंग आउट कि सुप्रीम कोर्ट जब रीजनिंग दे रहा है तो फैक्चुअल, ये जो कहते हैं ना कि इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं, तो इश्यूज ऑफ लॉ देखिए यहाँ पे क्या है। इश्यूज ऑफ लॉ ये है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जब ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और इस फैक्ट को चैलेंज नहीं किया गया, तो NCDRC ने इस फैक्ट को रिकंसीडर कैसे कर लिया? इसका रिकंसिडरेशन तो कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल सच अ फैक्ट इज चैलेंज्ड। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एक्सेप्ट किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोर्ट ने बोला, बैंक्स ने बोला था कि येस वी हैड गिवन द मनी, वी हैव इनिशिएटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, बट देन हाउ कैन द NCDRC ओवरलुक दिस फैक्ट दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम इट वॉज ऑलरेडी एडमिटेड? तो आपने सिविल लॉ में हमें आई थिंक ये पढ़ा होगा कि facts once admitted by parties can't be refuted at a later stage. Facts once admitted by parties cannot be refuted at a later stage. Okay? So this is a principle in civil law. ये भी अपने को पता होना चाहिए। लोअर कोर्ट में अगर हमने कोई फैक्ट एडमिट कर लिया, हम ऐसा नहीं बोलेंगे हाई कोर्ट में जाके कि नहीं नहीं वो घर पे मेरा कब्ज़ा नहीं है, आपने एडमिट किया हुआ है कि मेरा कब्ज़ा है,
तो मतलब कब्ज़ा किया है आपने, वो कब्ज़ा लीगल है कि इलीगल है उस पर बात करिए हाई कोर्ट के सामने, राइट। हाई कोर्ट के सामने आप ये नहीं कह सकते आके कि नहीं नहीं मैंने कब्ज़ा ही नहीं किया। यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड दैट फैक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Facts once admitted by the parties cannot be refuted at a later stage, provided that they are challenged. आपने हाई कोर्ट के सामने ही बोला आके कि ये जो फैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है मेरे एडमिशन को, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट, तब तो उस पर हियरिंग होगी। एनसीडीआरसी ने उस पर हियरिंग ही कैसे दे दी, ऐसे 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 ग्राउंड पे रीजनिंग ही कैसे दे दी जिसको चैलेंज नहीं किया गया था एनसीडीआरसी के सामने। इट वॉज ऑलरेडी एडमिटेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। So this is what is mentioned here. I hope it is clear to you. Any doubts so far? ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ है। इस शीट को कम से कम तुमको 2 बार और पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर द क्लास यू विल हैव टू रन थ्रू दिस शीट 2 times टू हार्डन दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके सामने अगर मान लीजिए क्लैट का पेपर ऐसा आ जाए जिसमें 5 पैसेजेस हों जो आपने नहीं पढ़े हैं, सो हाउ यू विल अप्रोच, इस चीज़ को सीखिए यहाँ पे, है ना। और लाइव क्लास ही कर रहे हैं, 2 घंटे में कर रहे हैं, तो इट इज़ इवन मोर बेनिफिशियल। अनचार्टेड टेरिटरीज़ में हम खुद को कैसे लिमिट करें, ज़्यादा वॉन्डर ना करें। प्रॉब्लम इस एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट्स के साथ ये है कि अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, अपना दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलाते हैं। अपना दिमाग मत चलाइए, आपके पास उतना दिमाग है नहीं। जो पैसेज में दिया है, जैसा पैसेज में दिया है उसको यूटिलाइज़ करिए, उसको यूज़ करिए। लेकिन हाँ ये है कि आपकी टाइम सेविंग होती है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे से पता रहे हैं। जैसे नलिटी ऑफ मैरिज पे भी है। अब नलिटी ऑफ मैरिज अपने आप में एक टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल आया है, जो जजमेंट है, ये देखो मैं तुमको बताऊँ इसको, तो आई विल टेक अप इन लीगल क्लास, आई विल टेक अप बिकॉज दिस इज़ अ इंटायर लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये लीगल पूरा एकदम नॉलेज है, कोर लीगल नॉलेज है, जिसमें बेयर एक्ट की रीडिंग हम करेंगे। बट अभी फ़िलहाल इसको हम अवॉइड भी करें। देखो ये वाला टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आपको पता हो, क्योंकि ये जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का अप्रैल का, जहाँ पे पत्नी ने अगर मैट्रिमोनियल होम को यानी पति के घर को छोड़ा है समय समय पे बिना हस्बैंड की गलती के, तो वो ग्राउंड है मेंटल क्रुएलिटी का, और पति क्या है डिवोर्स फाइल कर सकता है। राइट, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन 13 है ना, क्लॉज 1 1 से लेके 1A, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1A, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो अभी क्या है हम इसको देखेंगे। ये वर्ड लिखा हुआ है डेजर्शन बाय द वाइफ, डेजर्शन बाय द वाइफ। तो पत्नी ने पति को छोड़ दिया, तो सिर्फ मुंह से बोल के छोड़ दिया और पति के घर में ही रहती रही, पति के पैसे पे खाती रही, उसको डेजर्शन नहीं बोला जाता है। जैसे कभी भी पत्नियों को अपना केस अगर पति के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करना रहता है, तो एज एन एडवोकेट आई एडवाइस सबसे पहले पति का घर छोड़ दो। ठीक है, पति का घर छोड़ के कहाँ जाओ, अरे अपनी दीदी के यहाँ चले जाओ, अपने चाचा के यहाँ चले जाओ, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चले जाओ, पति का घर छोड़ दो। अगर तुम्हें वैलिड ग्राउंड बनाना है तो ये हो जाएगा कि इस तारीख को तुमने पति का घर छोड़ दिया था, और 1 साल तक अगर तुम पति के साथ नहीं रहती हो, और 1 साल के साथ तक तुम पति के साथ कोहैबिट नहीं करती हो, you don't develop any sort of relation with your husband for 1 year, then definitely it is presumed that marriage is likely not working and divorce should be granted. In fact, जब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कोई फाइल करता है ना, तो भी कोर्ट 1 साल का टाइम लेता है, तो आपका जो कंडक्ट होता है, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप केस डाल रहे हो जुलाई 2024 में, और आप कह रहे हो कि आपकी शादी जून 2024 से अच्छी नहीं चल रही है, तो जून 2024 से लेके जुलाई 2024 तक क्या हुआ, जून 2023 से लेके जुलाई 2024 तक 1 साल में क्या हुआ, ये कंडक्ट से कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि आपकी बात सच्ची है या गलत है। लेकिन आपके एप्लीकेशन फाइल करने के 1 साल तक कोर्ट प्रोसेस को स्लो रखता है जानबूझ के, बिकॉज उसको ये रहता है कि मैरिजेस को ब्रेक डाउन होने से जुडिशरी को बचाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे डिवोर्स का मामला इतना जल्दी, भले म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स हो, तो इतना जल्दी इंडिया में डिसाइड नहीं होता, बिकॉज मैरिज को यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 की, तो मैरिज इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट रादर एज अ सेक्रामेंट, और सेक्रामेंट नहीं टूटना चाहिए।
ठीक है, बिकॉज मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्रामेंट, इसीलिए पॉलीगैमी भी एक तरीके से ऑफेंस है, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने को पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सेक्शन 13 पहले पढ़ेंगे ताकि हमको फ़ायदा मिले ऐसी चीज़ को समझने के लिए जो हमारे सामने प्रिंसिपल के तरीके से आ रही है। ठीक है, डिवोर्स, सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के ग्राउंड्स दिए हुए हैं। तो ज़रा इसको रीड करिए पेशेंटली एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन। So as you can see here, there are different conditions mentioned. सबसे पहली, we will try to break the conditions for divorce, okay? And the first condition is this, right? अब देखो ये लिखा हुआ है, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act. ये retrospective operation की बात कर रहा है, ये prospective operation की बात कर रहा है। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सबसे पहले तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई होता है। 1955 में ये एक्ट आया, शादी 1955 के पहले हुई है अगर, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन वाले केसेस, क्योंकि इतने 50-70 साल हो गए हैं लॉ को आए हुए, तो अब रेट्रोस्पेक्टिविटी वाले केसेस क्या ही पेंडिंग होंगे। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझिए, वेदर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज इंडिकेटिंग रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, पीछे टाइम में जा रहा है। अब देखिए ये वर्ड यूज़ किया है मे, मतलब डिस्क्रिशनरी है, किसके ऊपर, जिसको डिवोर्स चाहिए। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड मे ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और द वाइफ बी डिजॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी। अभी डिक्री ऑफ डिवोर्स देगा कौन, मेरा सवाल यह है कि ये डिक्री ऑफ डिवोर्स कौन देगा? क्या मैरिज रजिस्ट्रार देगा, शादी कराने वाला देगा, कौन देगा ये डिक्री ऑफ डिवोर्स? हु विल ग्रांट दिस डिक्री ऑफ डिवोर्स? लेट अस से मैरिज रजिस्ट्रार के पास पति पत्नी गए और म्यूचुअल कंसेंट पे मैरिज रजिस्ट्रार के सामने बोले कि वी वांट टू डिवोर्स, और मैरिज रजिस्ट्रार जो कि एक ऑफिसर है उसने बोला डिवोर्स ग्रांटेड। वेदर दिस डिवोर्स इज लीगल और इलीगल? दिस डिवोर्स इज इलीगल, क्योंकि आपको ये एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेक्री जो होती है वो सिविल कोड देता है, सिविल रेमेडी को डेक्री बोलते हैं। ठीक है, डिक्री इज नथिंग बट अ सिविल रेमेडी अवेलेबल टू अ पार्टी ऑर्डर्ड बाय अ सिविल कोर्ट। तो डेक्री और डिवोर्स कौन देगा? कोर्ट देगा, यानी कोर्ट डिक्लेयर करेगा मैरिज को, तब डिवोर्स वैलिड होगा। तो ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद देखिए आपके सामने मल्टीपल ग्राउंड्स दिया है, पहला ग्राउंड ये है, दूसरा ग्राउंड ये है, तीसरा ग्राउंड ये है, राइट? राइट, अब क्या क्या चीज़ें देखिए मैरिज के लिए प्रिज्यूमेबली ज़रूरी होती हैं, वो आपको सेक्शन सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1A 1B के अंदर बताया है। देखिए कैसे कि शादी हो जाने के बाद आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज had voluntary intercourse with any person other than his or her spouse, यानी एडल्ट्रस रिलेशनशिप में अगर है, कौन? आपका स्पाउस,
तो एडल्ट्रस रिलेशनशिप में अगर आपका स्पाउस है तो ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। एक यहाँ पे वर्ड यूज किया है और। आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज यू हैव ट्रीटेड द प्रेजेंट पिटिशनर विथ क्रुएलिटी। उसके बाद वर्ड यूज किया है और। हैज डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years। मतलब 2 साल तक आप साथ में नहीं रह रहे। ये 2 साल कैलकुलेट कब किए जाएंगे? तो लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। तो मतलब अगर 2024 में आपने पिटीशन डाली, किस चीज़ की? डिवोर्स की पिटीशन फॉर डिवोर्स फाइल करी है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 2022 से आप साथ में नहीं रह रहे। तो या तो आपका पार्टनर एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, क्रुएलिटी कर रहा है, या आप 2 साल से अपने पार्टनर के साथ रह नहीं रहे, डेजर्ट कर दिया, अलग कर दिया है आपने उसको। तो क्या है, आप डिवोर्स का पिटीशन डाल सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू जो है वो किसी अनदर रिलीजन को कन्वर्ट हो जाए, या वो एक ऐसे अनसाउंड माइंडनेस पे हो जो कि इनक्यूरेबल हो, ठीक है, इनक्यूरेबल। कभी कभी अनसाउंड माइंड, कभी कभी साउंड माइंड, वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं बनता है। इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड हो, उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent, because as a person, as a spouse, you have a lot of things. अब इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी को मत लेके आइएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ ग्राउंड, मेंटल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, राइट। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है एक ऐसा मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, साइकोपैथिक डिसऑर्डर और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड विच इंक्लूड्स सिजोफ्रेनिया एज वेल। तो सिजोफ्रेनिया देखिए एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है, और सिजोफ्रेनिक पेशेंट आपका अगर स्पाउस है तो सामने वाले व्यक्ति डिवोर्स फाइल कर सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सच अ मैरिज मे बी डिसॉल्व्ड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सिजोफ्रेनिक हो गया तो शादी खत्म हो गई। पत्नी अगर केस डाल रही है, डिवोर्स चाह रही है तो ले सकती है, पति अगर चाह रहा है तो वो भी ले सकता है। अब ये जो डिवोर्स है जो सिजोफ्रेनिक, तो मान लो हस्बैंड सिजोफ्रेनिक है और हस्बैंड ने ही केस डाला, राइट, हस्बैंड ने ही केस डाला डिवोर्स के लिए, तो क्या ये ग्राउंड उसके फेवर में जाएगा? ठीक है, तो यहां पे वर्ड यूज किया है द अदर पार्टी। क्लार्क कंसोर्शियम यहां तुमसे खेल जाएगा। सिजोफ्रेनिक हस्बैंड है और उसी ने डिवोर्स मांग लिया कि मैं सिजोफ्रेनिक हूं, इसलिए मैं डिवोर्स चाहता हूं अपनी पत्नी से। सेक्शन 13 के अंदर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डिवोर्स की एप्लीकेशन आपकी पत्नी की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि लिखा है द अदर पार्टी हैज़ बीन incurably सफरिंग फ्रॉम सच अ डिजीज। समझ में आया मैंने क्या बताया अभी? नहीं समझ में आया? तुम्हारा स्पाउस पगला होगा तो तुम डिवोर्स ले सकते हो, भगवान न करे ऐसा हो किसी का स्पाउस पगला हो, क्योंकि आधे पगले तो यही हैं। लेकिन आपका पागल जो स्पाउस है, अगर वो कहे कि मैं पागल हो गया हूँ तो मेरे को तलाक चाहिए, तो तलाक आप सेक्शन 13 के अंदर नहीं ले सकते। हाँ, म्यूचुअल कंसेंट के अंदर ले लीजिए, वो बात अलग है। 13 के अंदर आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। अच्छा देखिए, 13 जेंडर न्यूट्रल है, 13 के अंदर कई सारी कंडीशंस हैं, लेकिन जो 13 है वो मेरा है, मतलब जेंडर न्यूट्रल, पति पत्नी दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि सिर्फ पत्नियों को डिवोर्स करने का अधिकार है, अनलेस एंड अनटिल आप हार्दिक पांड्या हो। The expression psychopathic disorder means a persistent disorder or disability of mind, whether or not including intelligence, which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or it is susceptible to medical treatment or not. अब साइकोपैथिक डिसऑर्डर क्या है ये आपको डिसाइड बताया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज क्या करता है? आप कहो डिसऑर्डर मतलब क्या, पागलपन मतलब क्या, तो पागलपन का दायरा आपको समझा रहा है। मेंटल डिसऑर्डर, साइकोपैथिक डिसऑर्डर क्या होता है। फिर देखिए वेनरल डिजीज विच इज़ इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। वेनरल डिजीज़ का मतलब क्या होता है?
ठीक है। अब वेनरल डिजीज़ मतलब जैसे HIV अगर आपके है, ठीक है, तो क्या ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन सकता है? व्हाट डू यू थिंक? वेनरल का मतलब, अच्छा मैं बोलूँ टीबी कम्युनिकेबल है कि नहीं है? टीबी कैसी है? कम्युनिकेबल है। पर क्या ये वेनरल डिजीज़ है? वेनरल डिजीज़ का मतलब सेक्स से जो ट्रांसमिट होती हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो ट्रांसमिट होती हो, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कोई बीमारी तभी ट्रांसफ़र हो सकती है जब आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कैपेसिटी में हो। तो सिर्फ कम्युनिकेबल नहीं होनी चाहिए, डिजीज़ कैसी होनी चाहिए? वेनरल डिजीज़ होनी चाहिए, राइट। एनी वेनरल डिजीज़ इन अ कम्युनिकेबल फॉर्मेट। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अगर आपको हो रही हैं पार्टनर की वजह से, तो भाई ऐसी शादी में तुम क्यों रहोगे जो तुमको बीमार कर रहा है? यू विल ट्राई टू ब्रेक फ्रॉम दिस, एंड इट इज़ रिटन दैट हैज़ बीन सफरिंग इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म, राइट। एंड it is important that the marriage must be solemnized. The marriage must be solemnized. Solemnized का मतलब क्या होता है? सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज आ चुका है क्लाइट में, हम तुमको हवा में नहीं पढ़ा रहे हैं। सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज के ऊपर पैसेज आ चुका है। सोलमनाइजेशन का मतलब होता है विधि पूर्वक तरीके से शादी हुई है, विधि विधान के साथ, ठीक है, पंडित बुला के प्रॉपर तरीके से शादी हुई है, वो कहते हैं मैरिज सोलमनाइज हुई है। पत्नी ने कहा पति से, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बांध दो मेरे को मंगल सूत्र, बांध दिया, बिजली कड़कने लगी, बारिश बरसने लगी, ऐसा हो गया, तो वो सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, ठीक है। सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज मीन्स पूरे आपके कस्टमरी प्रैक्टिसेस के साथ हुई हो, ठीक है। तो ये सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज आपको क्या है डिफाइन नहीं करेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीगल तरीके से प्रिज्यूम किया जाता है मैरिज को। हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, चले गए भाई शांति के रास्ते पे हिमालय की तरफ, ठीक है। ऐसा मैंने रिलीजियस ऑर्डर अपना लिया जो मेरे को कहता है कि ब्रह्मचार्य पे आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ, दुनिया छोड़ दी मैंने, ठीक है। वो गाना है ना उस मूवी का, एनिमल का, तो वैसा वाला कुछ अगर अवस्था हो जाए आपकी, तो रश्मिका मंदाना उसको डिवोर्स दे सकती थी। किसको? रणबीर कपूर को। खैर मैंने मूवी नहीं देखी है, ठीक है। एनीवे, हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 साल, for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had the party been alive. मेरा पति गया था, सॉरी मतलब किसी लड़की का पति गया था ईरान काम करने के लिए, ठीक है, और 7 साल से कोई बात नहीं हुआ है। उसके कंपनी में मैंने फ़ोन किया, लोगों को मैंने फ़ोन किया, तो पता चला कि सुना नहीं है उन लोगों ने उसके बारे में, यार वो कहाँ चला गया। तो मैं मान लूँगा कि वो, मतलब मैं मान लूँगी एज अ पत्नी कि वो मेरा पति क्या है, निपट गया है। और फिर क्या है, आप देखिए, इसके बावजूद भी आप शादी नहीं कर सकते। बात समझिएगा मेरी, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं अब आपसे कह रहा हूँ। 7 साल से पति अगर नहीं सुना हुआ है, पति के बारे में नहीं पता है, पत्नी के बारे के वेयर अबाउट्स नहीं पता है, ऐसा नहीं होगा जाके शादी कर लिए। पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? डिक्री ऑफ डिवोर्स लेना पड़ेगा कोर्ट से। डिक्री ऑफ डिवोर्स में जाके क्या बोलोगे? जज साहब सेक्शन 13 है ना, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर मेरे पति को 7 साल से मैंने नहीं सुना है उसके बारे में, मेरी पत्नी के बारे में 7 साल से नहीं सुना है मैंने, कृपया मेरे को डिवोर्स की डिक्री देने का कष्ट करें। तो कोर्ट आपको डिक्री दे देगी, तब आप जाके दूसरी शादी करेंगे। समझ गए? डेजर्शन बताया हुआ है। व्हाट अबाउट हिज डेथ सर्टिफिकेट? तेरा बाप छोड़ के गया था या तेरी माँ? है आदमी पता नहीं है कि आदमी है कहाँ, आदमी की जात के बारे में नहीं पता है, इनको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पंजीकृत लेके आओ। ऐसे कैसे होगा? ईरान में मर गया वो, कहाँ से बनाए डेथ सर्टिफिकेट? कैसी बातें करते हो यार। प्रिजम्पशन के लिए प्रमाण नहीं चाहिए होते हैं, है ना। ये 7 साल का क्रॉस यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है?
क्योंकि लॉ कहता है कि 7 साल से ज़्यादा अगर आपके बारे में नहीं सुना गया तो आप प्रिज्यूम कर ले जाओगे कि आप निपट चुके हो, आप इस धरती में हो नहीं। अब सर ये 7 साल क्यों है सर, 11 साल क्यों नहीं है सर, 5 साल क्यों नहीं है सर, 2 साल क्यों नहीं है सर? मैं तो सर 6 महीने में गायब हो जाऊँ, 6 महीने में अपनी पत्नी बदल लूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। 7 ईयर्स का प्रिजम्पशन लॉ ने क्यों लिया है, इसके पीछे अपने को पढ़ने का ही नहीं है। समझ में आया? जैसे डॉक्टर क्या करता है, मेरी बात समझना, मेडिकल प्रोफेशन और लीगल प्रोफेशन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दो चीज़ बहुत कॉमन है। पहले तो वो रिटायर नहीं होते दोनों, और एक कॉमन ये भी है कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप डॉक्टर बन गए डजन मीन आप कमा लोगे, आप वकील बन गए डजन मीन आप कमा लोगे। और तीसरी दोनों में मेन कॉमन बात यह है कि आपको मर्ज का कारण नहीं ढूंढना है। समझ गए? आपको मेडिसिन्स का जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढना है। मर्ज है तो ये दवा है। सोचते रहिए कि बीमारी क्यों लगी, ये दवाई क्यों दे रहे हैं, कोई और दवाई क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करना है जब उसको, तो अपने को पता है कि प्रॉब्लम ये है, सिचुएशन ये है और लॉ ये है। ज़्यादा उसके पीछे थॉट प्रोवोकिंग बातें करेंगे तो फिलोसॉफी पढ़ने लग जाएंगे आप। फिलोसॉफी पढ़ते पढ़ते पॉलिटिकल साइंस पे आ जाएंगे आप, लॉ छूट जाएगा। तो यहाँ पे 7 ईयर्स का प्रिजम्पशन है, बस एज अ स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स को याद रखें। अब डेजर्शन की बात करें तो डेजर्शन का मतलब होता है कि पिटिशनर, डेजर्शन ऑफ द पिटिशनर, जिसने केस डाला है, दैट पर्सन एज इज बीइंग डेजर्टेड, राइट, बाय द अदर पार्टी। वर्ड यूज किया है पार्टी, नॉट पार्टीज, सिंगुलर पार्टी, टू द मैरिज विद इन रीजनेबल कॉज। शादी हो जाने के बाद पति की माँ ने बोला कि मैं पत्नी के साथ, मतलब तुम्हारी पत्नी के साथ नहीं रह सकती, विल इट अमाउंट टू डेजर्शन? बोलो। शादी के बाद अगर ऐसा होता है कि पति पत्नी में लड़ाई होती है और पति के माँ बाप घर छोड़ के भाग जाते हैं, पति भी घर छोड़ के चला जाता है, पत्नी अभी भी पति के घर में है, पत्नी अभी भी पति के घर में है ना, और पति और उसका परिवार घर छोड़ के जा चुका है, विल इट अमाउंट टू डेजर्शन? yes or no? बस 3 लोग को भरोसा है अपने पे, बाकी लोगों को नहीं भरोसा है। इट वॉन्ट अमाउंट टू डेजर्शन ना, एज पर सेक्शन 13 इट वॉन्ट अमाउंट टू डेजर्शन। क्यों? बोलो सर, इतनी बेसिक सी बात है, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? अरे बेसिक सी बात पे ही बच्चे गलत कर रहे हैं मॉक्स वॉक्स में। 2 बार पढ़ लीजिए तो खुद ही समझ में आ जाता है। डेजर्शन का मतलब ये है कि पिटिशनर को डेजर्ट किया गया हो, पिटिशनर डेजर्ट करके ना चला गया हो, ठीक है, दूसरे का डेजर्ट बनने, ठीक है। ही डेजर्टेड हिज वाइफ टू बिकम अ डेजर्ट फॉर हिज गर्लफ्रेंड। डेजर्ट, डेजर्ट, डबल एस का ही अंतर है ना, ये साला एस बड़ी बेकार चीज़ है। लेट्स मूव अहेड, राम राम, ऐसी बातें नहीं करेंगे। सेक्शन 1A पे आते हैं। ईदर पार्टी, देखो लॉन्डो कितना मज़ा आ रहा है। मैं क्लास में अपने कहता हूँ हर बार, एड्रेनालिन से बच सकते हो, डोपामीन से बच सकते हो, ऑक्सीटोसिन से बच सकते हो, सीरोटोनिन से बच सकते हो, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से नहीं बच सकते तुम, इनसे लड़के ही निकलना पड़ेगा। देख रहे हो सोशल एक्सपेरिमेंट। सेक्शन 1A पे आते हैं। ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ज़्यादा बच गए, सीरोटोनिन से नहीं मतलब है। अच्छा, थोड़ा सा अभी मेरे को आइंस्टीन का दिमाग लगेगा ये स्टेटमेंट समझने के लिए, अभी वो दिमाग मैं नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। अभी कार में स्पोर्ट्स मोड ऑन नहीं है, इको मोड ऑन है, ठीक है, तो अपना अभी दिमाग तुम्हारा, विनायक तुम्हारा स्टेटमेंट समझ नहीं पा रहा है। ईदर पार्टी टू अ मैरिज
whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year, 8 years नहीं है, 1 year upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties. अब देखिए जुडिशल सेपरेशन क्या होता है, कोर्ट कहता है कि देखो भाई अगर तुम लोग अभी साथ में नहीं रह पा रहे हो तो एक काम करो, शादी हम ख़त्म नहीं करते हैं, हम तुमको अलाउ कर दे रहे हैं. देखिए डेजर्शन क्या होता है, डेजर्शन क्या होता है, ग्राउंड ऑफ डेजर्शन जो है वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो जाता है. लेकिन अगर आप कोर्ट की परमिशन से अलग अलग रह रहे हैं तो उसको जुडिशल सेपरेशन कहा जाता है. और जुडिशल सेपरेशन की डिक्री दे दी गई 2024 में, और 2025 तक इनके बीच में किसी भी तरह का कोहैबिटेशन, ठीक है, अब कोहैबिटेशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पति पत्नी के बीच में कोई रिजम्पशन और कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ जुडिशल सेपरेशन के बाद 1 साल तक, तो फिर आप केस ईदर पार्टी टू अ मैरिज क्या कर सकता है, दोनों पक्षों में से कोई एक भी डाल सकता है. अब देखिए यहाँ पे 1A और 1 में क्या डिफरेंस है, तो 1A में जो पिटिशनर है ना, जो पिटिशनर है वो ये सारी बातें बोलेगा, और यहाँ पे 1A में पति पत्नी में से कोई भी, ठीक है, मान लो जुडिशल सेपरेशन वाइफ ने लिया, ठीक है, कोर्ट ने वाइफ के फेवर के लिए जुडिशल सेपरेशन दे दिया. अब 1 साल तक पति को लग गया कि यार हम लोग अलग ही रह रहे हैं, क्या मतलब है शादी का, तो चलो शादी ख़त्म ही करते हैं. तो इस केस में भले ही जुडिशल सेपरेशन पत्नी के इंस्टेंस पे दिया गया हो, बट पति भी सेक्शन 1A के अंदर, सॉरी सब सेक्शन 1A के अंदर केस डाल सकता है. दैट देयर हैज़ बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after passing of a decree for restitution of conjugal rights. अब क्या है, जुडिशल सेपरेशन मांगती है पत्नी, अगर तलाक नहीं मिल रहा होता और पति कहता है कि मेरे मैरिटल राइट्स को वापस से इस्टेब्लिश कर दो, कोर्ट ने कह दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांटेड, पर ये पत्नी कह रही है कि मैं पति के घर रह ही नहीं सकती, मैं जाऊंगी नहीं, और 1 साल तक वो पति के घर नहीं गई, तो पति के रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हुए नहीं हुए. मतलब मैं पति पत्नी एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, नॉट स्टीरियोटाइपिंग इट, बट टेलिंग यू दैट जुडिशल सेपरेशन हो चाहे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो, अगर 1 साल तक आपके बीच में किसी तरह का कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ और आपके कॉन्जुगल राइट्स रीस्टोर नहीं हुए, पत्नी आपके साथ नहीं आई या पति पत्नी के साथ नहीं गया एंड ऑल ऑफ दैट, तो 1 साल के अंदर अंदर 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप डिवोर्स मांग सकते हो, ईदर पार्टी कैन सीक अ डिवोर्स. A wife may also present a petition for the dissolution of marriage by decree or divorce on the ground. अब सेक्शन 13 का जो सब सेक्शन 2 है, समझना बात को, वो वाइफ कब केस डाल सकती है, डिवोर्स का पिटिशन डाल सकती है. तो यहाँ पे देखिए आप सेक्शन 13 के अंदर जो क्लॉज 1, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1A और सब सेक्शन 2 है, यहाँ पे पिटिशनर करेगा, जो कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं. 1A में क्या है, 1A में जुडिशल सेपरेशन और कॉन्जुगल राइट का रेस्टिट्यूशन वाला मामला है, और 2 में क्या है, वाइफ है. तो वाइफ के पास कुछ स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है. अब ये यहाँ पे हमारे सामने 1 2 3 4 करके मैंशनड है कि वाइफ के पास क्या ग्राउंड है. दैट इन द केस ऑफ एनी मैरिज solemnized बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट or after, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner. अब ये वाला क्लॉज, इस पे माथाफोड़ी करने का मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो मामला है ये किसकी बात कर रहा है, एनी मैरिज बिफोर द सोलेमनाइजेशन ऑफ दिस एक्ट 1955 के पहले के मैटर्स. तो एज अ मैं आपको फैक्चुअली मतलब बता सकता हूँ कि सिंपल सी इतनी बात कह रहा है कि अगर आपका एक्ट के कमेंसमेंट के दौरान, इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, राइट, हस्बैंड हैड मैरिड आफ्टर द कमेंसमेंट, मतलब मैंने शादी करी थी पर मैंने एक्ट के आने के पहले दूसरी शादी कर ली, राइट. तो जो वाइफ है वो ये कह सकती है कि ही ऑलरेडी हैज़ एन एग्जिस्टिंग वाइफ स्पाउस लिविंग, मतलब ये बाईगामी को अवॉइड करा रहा है. बाईगामी 1950s में बड़ी कॉमन थी, आज़ादी के टाइम पे हिंदू फैमिलीज़ के अंदर भी शादियाँ होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, ठीक है. तो और ये नॉर्थ इंडिया में ट्रेंड नहीं है, दिस ट्रेंड वाज देयर इन द सदर्न इंडिया, राइट. तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि
क्लॉज 1 में ये मेंशन कर रखा है कि पत्नी दूसरी पत्नी के होने के कारण डिवोर्स दे सकती है, प्रोवाइडेड दैट इन ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। जब पिटिशन आप डिवोर्स की मांगने जा रहे हो तो उस टाइम पे दूसरी पत्नी जो है वो जिंदा होनी चाहिए। दैट द हस्बैंड सिंस द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैज़ बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। गिल्टी, नॉट अक्यूज्ड। अगर पति को रेप की सज़ा हो गई, सोडोमी या बेस्टियलिटी इन सब की हो गई। अच्छा, इसमें यह भी नहीं कहा है कि रेप की सज़ा जो ऑफेंस ऑफ रेप है अगेंस्ट द वाइफ है कि किसी और के अगेंस्ट है। हस्बैंड के ऊपर रेप का एलिगेशन लगा और गिल्टी प्रूफ कर दिया गया, सोडोमी और बेस्टियलिटी किसी के भी अगेंस्ट, तो वाइफ के पास ग्राउंड है कि वो शादी ख़त्म कर सकती है, राइट। सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कोई सूट चल रहा है। सेक्शन 125 CRPC जहाँ पे मेंटेनेंस की बात की जाती है उसके अंदर कोई सूट चल रहा है। सेक्शन 488 ऑफ CRPC जो कोर्ट को पावर देता है कुछ मटेरियल फैक्ट्स डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अ डिक्री और ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द हस्बैंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, शी वॉज लिविंग अपार्ट एंड देन सिंस द पासिंग ऑफ सच डिक्री कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज हैज नॉट बीन रिज्यूम्ड फॉर 1 year और अपवर्ड्स। अब यहाँ पे कस्टडी के बारे में बात चल रही हो चाहे पत्नी को मेंटेनेंस देने की बात चल रही हो, अगर पत्नी को 1 साल के लिए 1 year तक क्या है मेंटेनेंस की डिक्री दी गई है, कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस दो, पति को बोला है कि वाइफ को मेंटेनेंस दो, और हस्बैंड पे 1 साल से मेंटेनेंस दे रहा है और 1 साल से पत्नी जो है वो पति के से अलग रह रही है और दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, इस ग्राउंड पे वाइफ जो है वो डिवोर्स मांग सकती है। लेकिन वाइफ को मेंटेनेंस मिल रहा होता है, तो आप देखिए ये भी माना जाएगा कि अगर वाइफ शादी तोड़ना चाहती है, लेट्स से, राइट, पति नहीं तोड़ना चाहता है, तो वाइफ इसीलिए मेंटेनेंस मांगने लगती है। वाइफ कहती है कि मुझे शादी में रहना नहीं है, मुझे मेंटेनेंस दे दो। अब 125 CRPC के अंदर पॉइंट ये है कि देखा जाता है कि कौन डिजर्ट कर रहा है, कौन छोड़ रहा है। लेकिन 125 CRPC यूजुअली अगर वाइफ कमा नहीं रही है, सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है और वो भी उस मैरिज से अलग होना चाहती है, तो वाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए कोर्ट मेंटेनेंस वाइफ को ग्रांट कर देता है। लेकिन ये भी एक प्रिंसिपल है कि 1 साल के अंदर अंदर तक वाइफ को फिर ऐसी शादी को छोड़ देना चाहिए। अगर आप 1 साल से ज़्यादा मेंटेनेंस खींच रहे हो तो आपको बेसिकली देखा जाएगा कि आप हरास कर रहे हो हस्बैंड को। एंड ये सब वकील के काम होते हैं कि किस तरीके से वकील आपके कंडक्ट से हरासमेंट प्रूफ करे, कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं है, राइट। So you need to understand as a concept what it is written, that if the wife is taking maintenance from the husband since 1 year and she is not living with the husband and there is no cohabitation between them, then the wife has a ground to file for divorce. Okay? That the marriage, whether consummated or not. Now what is the purpose of consummation of marriage? Consummation means that the purpose of the marriage is fulfilled, which means to reproduce. Okay? अब देखो 4th वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पंजाब हाई कोर्ट का भी रिसेंट का जजमेंट भी आया है उसके ऊपर। दैट हर मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 years एंड शी हैज़ रेप्यूटेटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years, then the wife can file for divorce. Repudiated means the wife has indicated that she does not want to continue in the marriage. This is the meaning of the word repudiated the marriage. वाइफ ने 15 साल की आयु होते ही ये कह दिया कि मेरे को ये शादी में नहीं रहना है, क्योंकि माना जाता है, देखो अगर 12 साल की लड़की की शादी हुई है तो 12 साल की लड़की के पास किसी तरह की समझ नहीं है। 12 साल से 15 मतलब कह रहा है ना, 15 साल से नीचे की लिखा हुआ है ना, बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 years, राइट। 12 साल की थी तब शादी हुई, 15 साल तक आते आते उसको कोर्ट कह रहा है कि लॉ कहता है कि समझ आ जाती है। 15 साल की लड़की बता सकती है कि उसको ये शादी करनी है कि नहीं करनी, और बिफोर शी रीचेस 18 उसको क्या करना चाहिए, डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए। समझ में आया? अगर तुम्हारी शादी 15 साल की आयु से कम हुई है तो तुम्हें डिवोर्स 18 साल के कंप्लीट होने के पहले क्या कर देना है, रेपुडिएट कर देना है मैरिज को, राइट। तो मैरिज का रेपुडिएशन 12 से 15 साल के बीच में नहीं कर सकती वो, लेकिन मैरिज का रेपुडिएशन 15 से 18 साल के बाद करती है। अगर इस केस में वो 18 के ऊपर हो जाती है, अगर वो 18 के इस केस में
ऊपर हो जाती है। किस केस में? शादी 15 साल के पहले हुई थी, 15 ईयर्स की एज के पहले हुई थी, और 18 ईयर्स हो चुके हैं, एक की लड़की हो चुकी है, 18 साल की लड़की हो चुकी है, अब शादी, तो उसकी शादी को वैलिड माना जाता है। समझ में आया? तो सर उन शादियों के लिए क्या होता है जहाँ पे लड़की की आयु 15 और 18 के बीच में हो, तो ये तो इलीगल मैरिजेस कंसीडर किए जाते हैं ना, वैलिड एज नहीं है। तो सेक्शन एज 15 और एज 18 के बीच में अगर कोई लड़की शादी कर रही है तो वैसे भी कह सकती है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। लेकिन 15 साल से कम की आयु की लड़की शादी हुई है और वो लगातार 18 साल के एज तक मैरिज में है, तो मान लिया जाएगा कि शादी वाजिब है और लड़की को प्रॉब्लम नहीं है। अगर लड़की को प्रॉब्लम है तो उसको 18 साल के पहले इंडिकेट करना है। ये कंडीशन बहुत बार कंटेस्टेड होती है, लेकिन ये एक ही चीज़ की बात कर रही है, अंडर 15 ईयर्स। बस आपको इतना याद रखना है। 15 से 18 साल के बीच में क्या होगा, दैट इज़ नॉट मैंशनड हियर, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज एडेड इन 1976। जो ये क्लॉज सब क्लॉज 4 है, इट वॉज एडेड इन 1976। फॉलोइंग इट, ठीक है। अब ऑल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड ऑल, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। विल इमीडिएटली कम टू दिस न्यूज़, व्हाट इज़ द रूलिंग ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, बिकॉज वी हैड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 13। सेक्शन 13 अपने आप में आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेक्शन है, द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। ओके, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड दैट द वाइफ इज कंसिडर टू बी, ये मेंटल क्रुएलिटी होगा हस्बैंड के लिए, है ना। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियर case where the respondent left the matrimonial home without any fault on part of the husband, and such withdrawal by the respondent from time to time amounts as mental cruelty, which was done against any reason or justification. Why? Because see, कोर्ट ने कहा कि जो शादी होती है, the marriage blooms on the fertile soil of mutual support, devotion and allegiance, but repeated acts of separation, akin to a relentless storm, only uproot its foundation and threaten the sanctity of the union. Amidst the tempest of distance and abandonment, this bond breaks beyond repair, leaving behind irreparable scars on the landscape of trust and commitment. Aha! क्या बात है, क्या बात है। They got married in 1992 and had a boy and a girl. The family court rejected the husband's petition for divorce. He claimed that the wife possessed an intemperate and volatile nature, inflicted a vast panoply of cruelties upon him, and finally deserted him at least 7 occasions, including in 2011. Allowing the husband's appeal, the bench said that there was no act of cruelty on his part, and rather the evidence showed that the wife was dissatisfied, unhappy with the conduct of her mother, which made her so unhappy in the matrimonial home that she felt lack of space, control, and respect. We find that there is overwhelming evidence to show that it is the respondent who subjected the appellant to a life of uncertainty, with there being no settlement and mental peace in matrimonial life, despite 20 years of being spent together. It's a case of mental agony to the appellant, entitling him to divorce on the ground of cruelty under Section 13, subsection 1A of the Act. No serious conciliatory efforts were made by the wife to return to the home, and efforts were made by the husband, though family, friends and relatives, but admittedly did not succeed. It is therefore proved that the respondent has deserted the appellant without any reasonable cause and is entitled to divorce on the ground of desertion. So divorce is not being granted on the ground of mental cruelty. मेंटल क्रुएलिटी कर रहा है कोई, इस आधार पे आप कोर्ट से आग्रह कर सकते हो कि मेरी शादी को खारिज करिए, डिवोर्स दीजिए मुझे। कोर्ट ने आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए ये कहा कि पत्नी तुमको छोड़ के चली गई है, और डेजर्शन इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू ग्रांट अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। फॉलोइंग इट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बाय बेंच ने बोला कि पत्नी का बिना बताए मैट्रिमोनियल होम छोड़ना बार बार, ये एक तरह से मेंटल क्रुएलिटी भी है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, पत्नी के अगेंस्ट किसी तरह का कॉस्ट इम्पोजिशन नहीं किया, नथिंग लाइक दैट। हस्बैंड को अलाउ कर दिया कि तुम डिवोर्स की डिक्री ले लो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट्स यूजुअली वाइफ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा, और ये मिसयूज़ भी होते हैं, ये प्रोविजंस मिसयूज़ भी होते हैं शादियों में, राइट। बट हमारे यहाँ पे महिलाओं को, हमारे कानून व्यवस्था में महिलाओं को
हर तरीके से सुरक्षित किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि लॉ का अब्यूज़ हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हस्बैंड को हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। अब मेंटल क्रुएलिटी इज़ नॉट an offense, okay? Mental cruelty is only a ground of divorce. It is not an offense. Nobody will be prosecuted for the very same. Now that's all for the discussion of that sheet. Now what is the concept with respect to the assumption of 1 year, the divorce by mutual consent, and alternate relief in divorce proceedings? These are the 2-3 concepts that you please try to read and understand. It's simply a legal reading that has to be done. If there are any challenges, let me know. I hope this particular session of miscellaneous reading was helpful, and we discussed a lot of things. And first, to give a quick recap, there was this due process of law that authorities have to send legal notice. Followed by this, the courts cannot really change the arbitral awards. Arbitration awards are considered to be final, though the Parliament can amend 1996 Act. Followed by this, there was the case where we read that the courts will only constitute the meaning given by the Parliament to the law. And then we read that, okay, banks are vicariously liable for the conduct of the employees, and there was this consumer forum. Then you will find that, okay, banking matters can be represented before a consumer forum because banking services is considered to be consumer service. Followed by this, the concept of marriage and divorce in India. We discussed the grounds of divorce available to wife, to both the parties, and what happens if decree of judicial separation or restitution of conjugal right is granted. And followed by this, there was this ruling of the Delhi High Court which stated that desertion, leaving of matrimonial home by the wife time to time is considered to be mental cruelty and amounts to desertion. And this is a valid ground for divorce. So this was all for today's session. I'll share the highlighted PDF as well. Please give a quick reading of this after the class, and I'll see you guys tomorrow. Thank you so much.